Hello friends. So today we will study about the central sponsored schemes. ठीक है? So I'll write in short CSS. So CSS is nothing new topic for you guys. CSS are the central sponsored schemes which are sponsored by the center. Okay. But what we study today is very important because we will be studying the issues in CSS. What are the issues in CSS? And what are the solutions? So we will provide the solutions also. So in terms of issues as well as solutions, we will be studying the central sponsored schemes, and that is very important because through CSS actually center has been trespassing, or you can say transgressing into the state legislative area or state area where state is competent to pass a law or to administrate in that area, but union through central sponsored scheme is being entering into the area which is being reserved exclusively both for the states, because through CSS central government is being entering into the sphere of the states, yeah, like implementing the central schemes in the for these in the subjects which are mentioned in the state list. ठीक है? So it is. So what are the issues? We'll study in detail. So what are the issues? The issues are. So the issues are center transgressing in the state sphere of states, है ना? तो ये इशू है. And what are the other issue? And the second issue is central sponsored schemes, and it is eroding away the autonomy of the states. So it is eroding the fiscal. So both. So here it is eroding the administrative and legislative, both administrative and legislative autonomy, and here it is eroding the fiscal autonomy of states. So basically through CSS central government is eroding away the legislative, administrative or executive and fiscal autonomy of the states. So we'll be studying how it is doing that, plus why it is important this topic CSS. So what chairman of 15th Finance Commission NK सिंह, तो श्री NK सिंह, इन्होंने क्या बोला है NK सिंह जी ने? तो NK सिंह जी ने कहा है कि revisit of 7th schedule is required. So he is saying कि because central government is transgressing into the sphere of the states through central sponsored schemes, so it is at most required now that the 7th schedule should be, so there should be a review of the 7th schedule, because actually because it is the issues which are there in the 7th schedule which state government is using to trespass into the state sphere of the states. So what are those issues in the 7th schedule, and how and what reforms are required in the 7th schedule? Reforms in 7th schedule. So the reforms required in the 7th schedule in terms of only CSS. So broadly 7th schedule reforms or review will be making a separate lecture. But here in terms of restructuring of CSS, what are the reforms required in 7th schedule in terms of restructuring of CSS, we'll be studying today only. So reforms required in 7th schedule plus issues in CSS in terms of eroding away the legislative, administrative and fiscal autonomy of the states will be studying today, plus solutions. Okay, so we'll be starting without wasting any further time, we'll be starting directly jumping on to the important points. So we'll not make
very big lecture. We'll just discuss important points and reforms required, and then the solution. So actually, before jumping onto the issues of CSS, there is article 282, है ना. तो बेसिकली CSS जो है यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है आर्टिकल 282 यूज करके ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 282 क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज आप जाके गूगल कर लीजिएगा या लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा या DD बासु में देख लीजिएगा. बट आर्टिकल 282 क्या कहता है? आर्टिकल 282 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे काम करती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे काम करती है. स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे काम करती है और स्टेट लिस्ट पे काम करती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे काम करती है. ठीक है. तो ये क्या कहता है 282 कि यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक provide funds or can make welfare measures on subjects which are mentioned in the subject list, state list or any list. किसी भी लिस्ट पे वो वेलफेयर मेजर्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकता है. और सो इट कैन प्रोवाइड फंड्स बेसिकली. तो ये बोल रहा है कि यूनियन एंड स्टेट कैन प्रोवाइड फंड्स फॉर पब्लिक पर्पज, फॉर एनी पब्लिक पर्पज. क्योंकि पब्लिक पर्पज की डेफिनेशन लिखी नहीं पता ही है. फॉर एनी पब्लिक पर्पज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव कंपिटेंस, है ना. ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि इसकी लेजिस्लेटिव कंपिटेंस है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, बट स्टिल इट कैन प्रोवाइड फंड्स फॉर पब्लिक पर्पज इन अदर इन ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है ना. तो ये स्टेट लिस्ट में भी सब्जेक्ट्स के ऊपर फंड रिलीज कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. तो ये पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट लिस्ट में भी कर सकता है. एंड सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कैन रिलीज फंड्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस फॉर द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट. ये आर्टिकल 282 कहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो इसी को यूज करके यूनियन गवर्नमेंट ट्रेसपास कर रही है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को यूज कर रही है. यानी कि जो स्टेट के जैसे हेल्थ है, इट इज एक्सक्लूसिवली पब्लिक हेल्थ इज एक्सक्लूसिवली अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना. स्टेट सब्जेक्ट है. बट स्टिल आयुष्मान भारत तो है ना. आयुष्मान भारत, आरोग्य, प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना, आरोग्य जन योजना बेसिकली क्या है? दिस इज अ CSS स्कीम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंड्स टू दिस स्कीम यूटिलाइजिंग दिस आर्टिकल 282 डिस्पाइट बीइंग हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट. क्योंकि 282 कह रहा है कि आप किसी स्टेट सब्जेक्ट पे भी फंड दे सकते हो फॉर पब्लिक पर्पज, पब्लिक वेलफेयर के लिए. ठीक है ना. ये सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है. तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है आर्टिकल 282 और CSS का. तो CSS बेसिकली कौन कौन सी स्कीम्स हैं? बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की. कोई सड़क योजना है, अब जैसे रोड्स हैं, ठीक है ना, रोड्स हाईवेज. तो दैट इज ऑल्सो ए रोड्स हाईवेज आई थिंक इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. सो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स वगैरह इज अ स्टेट सब्जेक्ट. बट हाईवेज विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैन be declared by, can be utilized by union also. So union can also administrate them, can make legislation on them for those highways. But the state mostly roads basically वो एक state subject है, public transport. तो basically ऐसे बहुत सी इनकी योजनाएं हैं जो जिसमें ये state उसमें जो state subjects हैं उनके ऊपर ये welfare schemes लेकर आए हैं. ठीक है. तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर दो स्कीम्स विच, इसका अब क्या फंडा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करती है.
So central, so there are two things. One is central sector schemes. So central sector schemes जो है प्राइमरली यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं और इसमें 100% फंडिंग है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट दिस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सो प्राइमरली ये स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट्स के ऊपर है एंड फंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो 60% 40% depending on the scheme. So somewhere it is 75% or 25%. ठीक है, ये डिफरेंट है. और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 है. सो 90 बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, है ना. बट फॉर दी अदर स्टेट्स इट इज 75-25 एंड फॉर सम ऑफ दी स्कीम्स इट इज 60-40. So this the concept of central sponsored schemes is that the funding will be shareable between the center and the states. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल ने क्या किया है, सेंट्रल ने फंड प्रोवाइड किया है, कोई एक स्कीम लॉन्च की है और उसके ऊपर फंड प्रोवाइड कर दिया है. तो बेसिकली ये कुछ नहीं है. स्कीम क्या है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना. वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्कीम लॉन्च कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालता है और एक स्कीम लॉन्च कर देता है और मिनिस्ट्री और वाया एप्रोप्रिएशन एक्ट के माध्यम से फंड रिलीज करवा लेता है. भाई जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस करते हैं तो बजट में बताते हैं कि फला स्कीम को हम इतने पैसे देंगे, ये नई स्कीम हमने लॉन्च की है. तो उसमें ये बताते हैं कि इस स्कीम को हमने लॉन्च किया और इस स्कीम में हमने इतना पैसा दिया है. तो बजट के माध्यम से एप्रोप्रिएशन एक्ट जो होता है वो पास हो जाता है अगर पार्लियामेंट में, तो इतना पैसा उस स्कीम को रिलीज हो जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. अब बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा और डिटेलिंग दूं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की. तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बेसिकली मैंने आपको बताया 60% 40% कुछ भी हो सकता है, और 75-25 और 85-15 ऐसा नहीं है, 75-25 ही है और 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब अगर आपको मैं बताऊं, सो दिस इज यूनियन गवर्नमेंट शेयर एंड दिस इज मैंडेटरीली हैज टू बी शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से देता है. अब आपको पता है कि अब प्रॉब्लम क्या है. अब आपको पता है कि इन अवर फिजिकल फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरेशन है, उसमें स्टेट्स हैव लिमिटेड पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस. मेजर आप जानते हैं, इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कॉरपोरेशन टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. ठीक है ना. एंड सो इट इज मेजरली इनकम टैक्स है, स्टेट कॉरपोरेशन टैक्स है एंड important taxes. So excise duties are there with central government जो कलेक्ट करती है, और सेसेस एंड सरचार्जेस है बट वो शेयरेबल नहीं होते. ठीक है. तो सेसेस एंड सरचार्जेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती. ठीक है. तो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा टैक्स रेवेन्यू आता है. ठीक है. अब फाइनेंस कमीशन आप जानते हैं. सो देयर इज अ फाइनेंस कमीशन. सो व्हाट इज द मंडेट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? जस्ट अ मिनट. So what is the mandate of the finance commission? So finance commission mandate is to vertically devolve the funds between the share funds or the tax revenue between the union and state. तो यूनियन के पास जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो स्टेट से शेयर करना है उसको. सो दिस इज द मैंडेट ऑफ द फाइनेंस कमीशन. तो सरचार्जेस और सेसेस को छोड़ के बाकी जो भी टैक्स रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट अर्न करती है तो वो शेयर करती है स्टेट के साथ. तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि कितना % शेयर करना है. तो आपको पता है 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% रिकमेंड किया है, क्योंकि 14th ने 42% किया था, तो इसने 41% किया है रिकमेंड टू बी शेयर्ड फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू दी स्टेट्स. ठीक है. इसके अलावा सो दिस इज द अनटाइड ग्रांट्स. दीज आर कॉल्ड द अनटाइड ग्रांट्स. अनटाइड ग्रांट्स मतलब विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी टाइंग विद एनी
purpose or any specific purpose. So these are general purpose transfer. These are called, so this is called general purpose transfer. General purpose transfer. And another is specific purpose transfer. And specific purpose transfer is this CSS. एंड जनरल पर्पस जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है. फाइनेंस कमीशन इसके अलावा कुछ ग्रांट्स इन एड भी देता है. दैट इज ऑल्सो जनरल पर्पस ट्रांसफर प्लस ग्रांट्स इन एड, एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 275 एंड CSS अंडर आर्टिकल 282, है ना. तो 275 में कुछ ग्रांट्स इन एड भी देता है. ग्रांट्स इन एड बेसिकली क्यों दिया जाता है कि कहीं भी कोई रेवेन्यू शॉर्टेज है किसी भी स्टेट में, सभी स्टेट्स को नहीं देना है, उन स्टेट्स को देना है जहाँ पे कुछ रेवेन्यू शॉर्टेज है ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस. कहीं कोई फॉर एग्जांपल आप समझ लो ग्रांट्स इन एड, कहीं कोई कैलामिटीज़ हुई हैं या कोई कुछ इश्यूज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है तो उनको कुछ ग्रांट इन एड देना है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है तो ग्रांट इन एड एक्स्ट्रा देना है. तो कुछ ग्रांट इन एड बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक स्पेशल रीजंस, बट दैट इज ऑल्सो अनटाइड ग्रांट. सो अनटाइड मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के साथ टाई अप नहीं है. इसमें क्या होता है, सो बेसिस सो स्टेट्स सो डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स. सो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट्स की डिस्क्रिशन होती है कि वो उस फंड को कैसे यूटिलाइज करें. तो स्टेट जनरली क्या करते हैं, उस फंड को बेसिकली वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए. बट कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली अपने जो भी वो बजट प्रस्तुत करते हैं, आपको पता है बजट प्रोड्यूस किया जाता है इन दी रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो वो कहते हैं ना भैया इस फला स्कीम को 50,000 करोड़, इस फला स्कीम को 20,000 करोड़, इस फला स्कीम को जो है 500 करोड़. तो अलग अलग आप फंड एलोकेट करते हो. तो वो फंड कहाँ से आता है, बेसिकली वो अपने हिसाब से स्कीम्स डिवाइस कर सकते हैं, स्कीम्स बना सकते हैं, स्कीम्स की आर्किटेक्चर बना सकते हैं, स्कीम्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्कीम्स के बेनिफिशरीज डिसाइड कर सकते हैं, उसके एंटाइटलमेंट डिसाइड कर सकते हैं और फंडिंग उसकी डिसाइड कर सकते हैं. सब उनके पास ऑटोनोमी है उसमें अंडर आर्टिकल 275 प्लस जो अनटाइड ग्रांट्स उससे मिलते हैं. बट हियर अब आर्टिकल 282 के माध्यम से जो ग्रांट दी जा रही है स्टेट को, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट and that is called tied grant, and this is the CSS which is central sponsored scheme. So tied grant क्या होती है, tied grant is कि किसी एक स्कीम के साथ आपको ग्रांट मिल रही है. तो अगर आपको ग्रांट मिल रही है मनरेगा के लिए, तो वो जो 50,000 करोड़ मिल रहे हैं वो मनरेगा के लिए मिल रहे हैं. आप किसी और स्कीम में यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको वो तब रिलीज होगा जब आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे. समझ रहे हैं. तो इसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है गवर्नमेंट्स को, इसमें नहीं देना पड़ता, इसमें देना पड़ता है. यानी कि आप तो बेसिकली आपने उस फंड का क्या यूटिलाइज किया है. तो इनिशियल फंड मान लो गवर्नमेंट को 20, सो गवर्नमेंट हैज टू रिलीज फॉर एग्जांपल 200 करोड़ टू एनी स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए. तो गवर्नमेंट एक साथ 200 करोड़ रिलीज नहीं करती है. सो सम प्रोपोर्शन ऑफ 200 करोड़ इज रिलीज्ड एंड देन बिफोर रिलीजिंग द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज बीन टेकन एंड देन ओनली इट्स अदर शेयर जो रेस्ट ऑफ द शेयर्स विल बी रिलीज्ड. तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है. तो दैट मीन्स it is a tied grant, so the grant will be provided for a specific purpose, for a specific scheme. So that is the CSS. अब इसमें इशू ये है कि CSS क्या है. CSS बेसिकली अब इसके इश्यूज क्या हैं हम वो देख लेते हैं. अब तो आपको मेनली तो समझ में आ गया, अब इसके इश्यूज देख लेते हैं. तो CSS बेसिकली इशू ये आता है CSS के साथ कि स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है. कैसे खत्म हो जाती है, CSS में क्या करते हैं लोग, 60% और 40%. तो 60% तो यूनियन ने दे दिया, अब ये जो 40% है ये स्टेट को देना है. ठीक है ना. अब अगर स्टेट देगी 40% अपने पास से, तो क्या प्रॉब्लम है, अब स्टेट के पास फंड्स लिमिटेड हैं. ठीक है ना. मान लो एक्स फंड्स हैं. एक्स फंड कहाँ से है, जो उसने अपना जनरेट किया, कुछ रेवेन्यू उसने जनरेट किया है.
जनरेटेड, प्लस जो सिर्फ ग्रांट मिली है, अनटाइड ग्रांट, इसमें से ही इसे 40% देना है। आउट ऑफ दिस कोई अलग से ग्रांट नहीं मिल रही है इसके लिए कोई, 60 तो यूनियन ने दे दिया, 40 इसमें से ही उसको निकालना है। तो एक तो जो इसे ग्रांट मिली जिसके माध्यम से ये अपने वेलफेयर मेजर्स इनिशिएट करता, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अम्मा कैंटीन चल रही है, तो बेसिकली गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स चला रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, ठीक है ना। किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है, कोई कंप्यूटर बांटना है, लैपटॉप बांटना है, एनीथिंग यू वांट टू, एनी प्रोग्राम, आपने कहीं हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल चलाए हुए हैं, आपको राइट टू एजुकेशन है फॉर एग्जांपल, उसकी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन रेवेन्यू इसमें से ही आपको देना है। तो बेसिकली जो कहा जाता है कि अनटाइड ग्रांट्स जो है उससे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सीएसएस उस डिसेंट्रलाइजेशन को इरोड कर देती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अगर अनटाइड ग्रांट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बट उसको क्या है, सीएसएस का भी पार्ट उसमें से खर्च करना पड़ता है, तो 40% इसको सीएसएस में देना है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें इसको 40%, 30%, 25% देना पड़ेगा, तो इसमें से उसका बहुत पैसा इन स्कीम्स में निकल जाता है। तो अगर उसका डिवोल्यूशन बढ़ा, अगर 41%, 42% अनटाइड का, तो गवर्नमेंट ने 25% से 30% आउटले इसका बढ़ा दिया है, यानी 25 से 30% ऑफ दी सेंट्रल आउटले। तो सेंट्रल का आउटले 25 से 30% का, वो इसमें इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में खर्च होता है, 25 to 30%, ठीक है, आउट ऑफ दी एंटायर। तो जो सेंट्रल की इनकम है उसका 25 से 30%। तो सच इज दी, आप समझ सकते हैं कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करिए वेलफेयर के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। सो इट इज नॉट 25 to 30, बट इट इज एक्चुअली 25%, ठीक है ना। सो व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है, तो ये खर्च हो जाता है इनका। अब इशू ये है कि व्हाट इज द इशू, कि इनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। अब क्या होता है, ये स्कीम्स तो ऊपर से ही इनका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर स्कीम्स का, बेनिफिशियरी यानी कि एंटाइटलमेंट, द बेनिफिशियरी एंटाइटलमेंट कितना रहेगा इसमें, एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी था, उसमें बता दिया अभी 10 किलो ये देना है, 5 किलो ये देना है, तो फ्रीडम नहीं है ना, आप कोई घटा नहीं सकते, आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें फिक्स कर दी जाती हैं, दैट इज टू बी फिक्स्ड, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज इट, उसको चेंज नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, बेसिकली वो लोकल नीड्स के हिसाब से टेलर नहीं कर सकती इन स्कीम्स को, क्योंकि उसको जो स्कीम्स ऊपर से जैसे उनका आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क है उसी हिसाब से उसको उन स्कीम्स को पैसा अलॉट करना होगा और उस स्कीम को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके पास फ्रीडम नहीं है कि वो इस स्कीम्स को अपनी नीड के हिसाब से टेलर कर सके, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से ही डिज़ाइन होके आती है और स्टेट गवर्नमेंट को उसमें फिर पैसा देना होता है, जनरली पैसा देना होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, बिकॉज इट इज़ दिस, अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मैंने आपको बताया था मेनली स्टेट लिस्ट पे होती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे होती है, इन दोनों पे होती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई हम जो भी आपने स्कीम हमें, जिसमें आप बोल रहे हो कि हमें पैसा देना है, सो आप हमें फंड दीजिए तभी हम पैसा दे पाएंगे, अदरवाइज वी डोंट प्रोवाइड दी फंड्स, ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है, बिकॉज दिस स्कीम इज बीइंग इशूड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ये स्कीम आई है। सो स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज डिनाई टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रीडम नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, और फिजिकल जो बहुत पैसा उनका फंड है स्टेट का वो रोड अवे हो जाता है इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स। और जो वन साइज फिट्स ऑल, मतलब आपने एक स्कीम बना दी वो पूरी सब स्टेट्स के लिए बराबर फिट इन हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टेट गवर्नमेंट को वो आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी कि वो अपने नीड्स के हिसाब से अपने
अपने रीजनल एस्पिरेशंस के हिसाब से उस स्कीम को टेलर करें और उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करें स्कीम को, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन CSS। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट कैन डिनाई टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। सो आई वाज सेइंग कि वो मना कर सकती है, बट एक्चुअली वो स्टेट में वो तो इट कैन डिनाई, बट कंकरेंट में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ पास कर रही है, सो इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और वट एवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैव बीन इशूड by the center to the state, so state have to obey those administrative provisions because as per so क्योंकि basically क्या है कि but you already know that state government cannot disrespect any directive issued by the center, because then it is competent enough for the central government to say that the state government is not working as per the provisions of the constitution. But here CSS, as you already know, that these schemes, welfare schemes, have been implemented utilizing the powers which are provided to the union government in article 282. but article 282 ये कहता है कि केवल फंड्स देना है, बट हेयर द इशू इज कि फंड्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, पूरा का पूरा उसका फ्रेमवर्क, बेनिफिशरीज, एंटाइटलमेंट्स, किसको देना है किसको नहीं देना है, सारा उसका फ्रेमवर्क पूरा डिज़ाइन करके देती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको टेलर नहीं कर सकती अपनी नीड्स के हिसाब से। तो इस वजह से स्टेट लिस्ट में जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट को दे हैव टू इम्प्लीमेंट, सो दे कैन डिनाई providing the proper reason to the union government, because union government can always approach the court that they have disobeyed the directives given by the center. But the thing is, in the subjects which are mentioned in the concurrent list, state government cannot deny, because it is the duty of the state government. So whatever provisions or whatever orders are issued by the union government for the subjects which are mentioned in the concurrent list, state government cannot go against the central government in disobeying those directives. So in the for those welfare schemes which are for the subjects which are mentioned in the concurrent list, it is the duty of the state to to provide the funds for those schemes. For example, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है, सो एजुकेशन एज यू नो concurrent लिस्ट में है, कोई फॉरेस्ट concurrent लिस्ट में है, बट एक वाटर की है, वाटर यू ऑलरेडी नो इन स्टेट लिस्ट, तो वाटर की वो डिनाई कर सकती है, रोड की वो डिनाई कर सकती है। CSS कह रहा हूँ मैं, केवल CSS, बिकॉज CSS आर्टिकल 282 है और 282 केवल फंड की बात करता है, ठीक है ना। वो जो ऑटोनॉमी यहाँ पे इरोड कर लिया उसकी बात नहीं करता है, फंड की बात करता है। और क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑलवेज से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट is exceeding its powers which are not provided to it, so it is exceeding its powers which are provided to it in the constitution. So constitution में वो केवल यूनियन और कॉन्करेंट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स इन आर को टर्मिनस, है ना, को एक्सटेंसिव एज पर दी लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ही सब्जेक्ट्स पे वो एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है, स्टेट लिस्ट पे वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता, बट इट कैन ऑलवेज प्रोवाइड फंड्स अंडर आर्टिकल 282। तो वो कह सकता है कि ये ग्राम सड़क योजना है, तो सड़क के ऊपर सड़क वो क्या कर सकता है, बेसिकली वो फंड्स रिलीज कर सकता है सड़क के ऊपर कि आप इन सड़कों का निर्माण कीजिए और इतना आप एक्सटेंसिव रोड्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। नाउ स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपने हिसाब से उन फंड्स को यूटिलाइज करे और जहाँ पे सड़क चाहिए वहाँ पे वो करे, बजाय इसके कि यूनियन गवर्नमेंट डिक्टेट करे उनको, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसग्रेस द स्टेट्स ऑटोनॉमी ऑन द स्टेट स्फेयर, इसमें स्टेट, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट पे भी कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये इशू है। सेकंड जो मैंने 7th शेड्यूल का बताया था, अच्छा इसमें एक चीज़ और थी कि अब जब आपने स्टेट ऑटोनॉमी को यहाँ पे हैम्पर कर दिया है, क्योंकि स्टेट को भी क्या है ना, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करना है और एडमिनिस्ट्रेट करना है और उसके ऊपर वेलफेयर स्कीम्स बनानी है। तो इशू ये भी है कि बहुत सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप पे लॉन्च करके रखती है जो कि वेलफेयर के लिए उन सब्जेक्ट्स के ऊपर,
और अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बेसिकली अगर आ जाती हैं तो स्टेट अपनी स्कीम्स को फंड कहाँ से देगी? अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को फंड देगी तो नहीं दे सकती, ऑब्वियसली इशू हो जाएगा। और अगर वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च कर देती है अपनी स्टेट में और उसने अपने स्टेट में कोई लॉन्च नहीं की है अपनी स्टेट स्कीम, तो क्या होगा ना, उसका जो स्फेयर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव, वो इरोड हो जाएगा। वो इसलिए इरोड हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि इट इरोड्स अवे दी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल, तीनों को इरोड करता है। तो इसलिए करता है क्योंकि वो लेजिस्लेट ही नहीं कर पाएगा उस एरिया में, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम चल रही है। तो वो लेजिस्लेट करके क्या करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेट करके क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी ऑर्डर है कि भाई आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है स्कीम, या ऐसे ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे इन टर्म्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी स्कीम भी चला सकती है और सेंट्रल स्कीम भी चला सकती है विदाउट हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों में। सो क्योंकि ये लिखा है साफ साफ कि इन टर्म्स ऑफ एनी, इफ देयर इज एनी रिपग्नेंसी between the state and the concurrent, between in the concurrent list between the union and the state. So if any provisions of the state law which are made in a subject which are mentioned in the concurrent list, so if there any repugnancy of the provisions with the union law, so the union law shall always prevail. तो उस केस में क्या होगा, जो स्टेट के प्रोविजंस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो मैं आपको बोल रहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट को मानना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है मैं आपको बता दूं, कॉन्करेंट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट में 52 हैं और यूनियन में 100 हैं। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट में बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्करेंट में सब्जेक्ट्स कम होने चाहिए, स्टेट में बढ़ने चाहिए। अब उसमें क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा अगर क्योंकि कंकरेंट में बढ़ाने से ये यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसग्रेस कर पा रही है स्टेट स्फेयर को। तो अगर आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो ऑटोनॉमी तभी होगी जब आप कंकरेंट लिस्ट को कम करेंगे और स्टेट लिस्ट को बढ़ाएंगे। अब कंकरेंट लिस्ट को बढ़ाने से क्या इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि आपने कंकरेंट लिस्ट को बढ़ा दिया है तो वहाँ पे यूनियन भी लेजिस्लेट कर रही है, स्टेट भी लेजिस्लेट कर रही है। तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द फुल राइट टू इनिशिएट द वेलफेयर स्कीम्स ओवर दोज एरियाज विच आर मेंशन्ड, जैसे एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, फूड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन किया है, लेजिस्लेशन में तो और भी तगड़ा इशू है। जो राइट बेस्ड लेजिस्लेशन हैं वो तो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं। अब लेजिस्लेचर ने पास किए हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर ऑर्डर निकाल रही है, जबकि लेजिस्लेचर ने इसे पास किए हैं और उसमें सब चीज़ें फिक्स हैं, एंटाइटलमेंट फिक्स है, ये फिक्स है, वो फिक्स है, कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए राइट टू एजुकेशन है, तो उसमें तो सबको एजुकेशन फ्री मिलनी है बच्चों को फ्रॉम दी एज ऑफ 6 to 14, है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है क्योंकि वो पास हुआ है पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। अब स्टेट क्या करेगी, स्टेट तो अपने फंड्स में से वो देगी पैसा। तो अगर स्टेट अगर किसी और उसमें लॉन्च करना, किसी और कोई और एरिया में खर्च करना चाहती है तो पैसा ही नहीं है उसके पास खर्च करने के लिए। दैट इज़ द इशू विद दी दिस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ये बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर रही है इन दी स्टेट स्फेयर, है ना। क्योंकि कॉन्करेंट में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फुल राइट, एजुकेशन इज a subject in the central in the concurrent list. हेल्थ में इन्होंने आयुष्मान भारत बनाया है योजना, ठीक है ना, और भी इनकी बहुत योजनाएं हैं हेल्थ एरिया में। तो ये बेसिकली हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये इंक्लूड कर रहे हैं स्टेट स्फेयर में। तो दैट इज़ वाई जो मैं 7th शेड्यूल की बात कर रहा था कि 7th शेड्यूल को रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो यही रिविजिट करने की ज़रूरत है क्योंकि 7th शेड्यूल में कंकरेंट में आपने बहुत सब्जेक्ट्स डाल रखे हैं, तो 61 सब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो कि लोकल नीड्स को है, लोकल प्रायोरिटीज़ या लोकल एरिया के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन है। सो एजुकेशन इन कैन बी इंक्लूडेड इन दी स्टेट लिस्ट ओनली, क्योंकि एजुकेशन नेशनल का काम तो नहीं है, ठीक है ना। पावर्टी समझ में आती है, पावर्टी दैट इज़ अ नेशनल इशू, ठीक है ना, बट एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो व्हाई यू आर इंक्लूडिंग द एजुकेशन इन दी सेंट्रल ये इन द कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा एक तो यही है, और दूसरा इसमें हमारे 7th शेड्यूल में जो एनक्रोचमेंट है अभी जो
एनक्रोचमेंट है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट इज implementing some law in the concurrent list, but that is touching upon the state list also. तो जिसको पिच एंड सब्सटेंस में डॉक्ट्राइन में पास कर देता है हमारा कोर्ट्स. तो द इशू विथ कि स्ट्रिक्ट डिमार्केशन पावर ऑफ पावर्स नहीं है. बहुत ही ज़्यादा जो जो हमारी लिस्ट है इनको वापस रिव्यू करना चाहिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. अभी तो हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे. तो इसमें तो मोटा मोटा यही है कि आपको कंकरेंट लिस्ट को कम करना होगा और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि लोकल नीड लोकल प्रायोरिटीज रिलेटेड हैं उनको आपको स्टेट लिस्ट में शिफ्ट करना चाहिए. और स्टेट लिस्ट को आपको डेफिनेटली स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए, बजाय इसके कि आपने कॉन्करेंट लिस्ट को आप बढ़ा रहे हो, स्टेट लिस्ट को आप कम कर रहे हो. सो दिस इज दी रिविजिटिंग ऑफ 7 शेड्यूल विच इज रिक्वायर्ड. ठीक है. और जो मैं बोल रहा था कि जो राइट बेस्ड जोन में ये भी इशू है, क्योंकि उसमें तो बहुत ही तगड़े तरीके से आपको बाउंडेशन हो जाती है, क्योंकि ड्यूटी हो जाती है वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट की. स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कानून बनाया गया है उसमें पार्लियामेंट में पास होकर. जैसे राइट टू एजुकेशन है या नेशनल फूड सिक्योरिटी है, ठीक है ना, या राइट टू एम्प्लॉयमेंट है. तो ये कानून को स्टेट गवर्नमेंट हैव टू इम्प्लीमेंट. दे हैव नो अदर इशू, देयर इज नो एस्केप. तो स्टेट गवर्नमेंट हैव टू इम्प्लीमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड देयर फंड्स. कहीं से भी निकालो कहीं भी दो, और ऑटोनॉमी है ही नहीं, जो बोला है वही करना पड़ेगा. ठीक है ना. अब जैसे वो था रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट वाला जो इनका कानून था, जिसमें ये लैंड एक्विजिशन वाला, तो उसमें क्या था ना, लैंड एक्विजिशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. लैंड ये जस्ट अ मिनट. सो लैंड एक्विजिशन एक्चुअली इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, लिस्ट सब्जेक्ट. बट द थिंग इज कि उस पर कानून बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, बट वो रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो आपको मानना पड़ेगा वो कानून. ठीक है. तो आप अगर वही कानून इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें लिखा है कि अगर आप रीसेटल करोगे, रिहेबिलिटेट करोगे, तो आप इतने फीचर्स फैसिलिटीज़ दोगे किसी बंदे को, उसमें ये लिखा है, देना पड़ेगा. तो स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. 25 दी ही है तो 25 ही देनी पड़ेंगी, 24 नहीं कर सकते. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कहे सोचे कि मैं 24 दे दूँ और एक ना दूँ, कुछ पैसा बचा लूँ, या फिर 24 फैसिलिटीज़ में ज़्यादा पैसा लगा दूँ और एक जो मेरे को कम लग रही है उसमें कम पैसा लगा दूँ, फंड्स भी जो एलोकेट करने हैं कम पैसा लगा दूँ, तो वो भी नहीं हो सकता. तो बेसिकली 25 फैसिलिटी की अगर इन्होंने बात करी कि एक एरिया में देनी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि कोई एक फैसिलिटी ज़्यादा फंड दे दें और किसी एक फैसिलिटी में कम फंड दे दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली प्रोवाइड द प्रॉपर डिटेल ऑफ द लॉ. तो there is no scope for states to come in between and provides detailing. वो अपनी डिटेलिंग नहीं कर सकते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके दे दिया है. तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्लूडिंग इन दी स्टेट्स ऑटोनॉमी. ठीक है, वाया CSS. अभी हम CSS से थोड़ा हट गए, बट CSS के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा ऑटोनॉमी को डिस्टर्बेंस दी जा रही है. ठीक है ना, क्योंकि वो टाइड ग्रांट्स हैं, टाई कर दिया है आपने किसी एक स्कीम के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसी में काम करना पड़ेगा. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अदर इशू, नो अदर ऑप्शन. और कॉन्करेंट में तो बिल्कुल ही ऑप्शन खत्म है, क्योंकि कॉन्करेंट में अगर आपने इम्प्लीमेंट करके दिया है तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. आप वो भी इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपना भी कीजिए, आपकी मर्जी है. रिपग्नेंट भी होना चाहिए, नहीं तो आपका नल एंड वोइड हो जाएगा. स्टेट वाला आप मना कर सकते हो अगर स्टेट लिस्ट में है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू अप्रोच द कोर्ट कि वेलफेयर मेजर, नेशनल पब्लिक पर्पज़ के लिए स्कीम है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही. बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ओबे ईच एंड एवरी डायरेक्टिव ऑफ द सेंटर. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दिया कि पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई भी वर्क है स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो इट कैन ऑलवेज से कि वेलफेयर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो कोर्ट कैन ऑलवेज से कि द स्टेट गवर्नमेंट वट एवर इज डूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल, बट डेफिनेटली दे आर नॉट जस्टिशिएबल। तो कोर्ट्स में हो सकता है जीत भी जाए स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही वेलफेयर की बात हुई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड, राइट टू ये, राइट टू वो, सही है ना, सब दिया है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स जो दी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, बट दे आर नॉट जस्टिशिएबल, दैट इज़ ओके। तो स्टेट में फिर भी अधिकार है स्टेट के पास, स्टेट लिस्ट में, बट कंकरेंट में इट हैज़ नो राइट। एंड it is there where the central sponsored schemes have been intruding the legislative, administrative as well as the fiscal autonomy of the states, ठीक है। so these are the issues, ये issues हैं। और इसका solution मैंने बताया, इसका solution यही है कि CSS को कम करना होगा, it has to be reduced, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे, उसकी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी अनटाइड ग्रांट्स की, और टाइड ग्रांट्स की फंडिंग। सो इसका सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि वो ग्रांटीनेट जो देता है, सो ग्रांटीनेट देता है ना, ग्रांटीनेट 275 में, उसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का भी ग्रांट दे, 60 तो दे ही रहा है, 40 भी दे फॉर पुअर स्टेट्स डेफिनेटली, जो ऑलरेडी रिच स्टेट्स हैं, जिनकी GDP GSDP ज़्यादा है, उसके लिए शायद ना भी जरूरत हो, बट दोज विच आर पुअर स्टेट्स, तो उनके लिए ग्रांटिंग एड में स्पेशली उन सब स्कीम्स के लिए अलग से प्रावधान करना पड़ेगा फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तभी आप, अगर आप फंड एलोकेट करोगे, ठीक है, आपने ऑटोनॉमी छीन ली लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बट फिजिकल तो ऑटोनॉमी दे दो। फिजिकल ऑटोनॉमी मतलब फिजिकल पैसा तो दे दो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पैसा मिलेगा कम से कम वो इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे, ठीक है। और पैसा मिलेगा तो फिजिकल ऑटोनॉमी इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जो अनटाइड ग्रांट्स हैं वो अपनी स्कीम्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ही काम के लिए दो स्कीम्स हो गई, ठीक है। नो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन मर्ज इट स्कीम विद द सेंट्रल स्कीम, है ना, वहाँ पे मर्ज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी तो एटलीस्ट को आपने कम से कम कंप्रोमाइज़ किया, बट फिजिकल ऑटोनॉमी आप आर्टिकल 275 के माध्यम से इंश्योर करो। तो जो आर्टिकल 282 के माध्यम से कर रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह आर्टिकल 275 के माध्यम से करेंगे, तो वो फाइनेंस कमीशन के भी परव्यू में आ जाएगा, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ग्रांट्स भी स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएंगे टू इम्प्लीमेंट दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो आप ये लिख के आइए कि 275 के माध्यम से इम्प्लीमेंट करें इसको, यानी कि 275 के माध्यम से फंड्स एलोकेट करें, जो कि स्टेट का शेयर है for the poorer states whose GSDPs is comparatively low, और those who are poor states, जो भी एक क्राइटेरिया उसके हिसाब से कम है, इनकम डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा है, जो कि फाइनेंस कमीशन कुछ लेती है ना, जो पैरामीटर्स लेती है, तो उसमें इनकम डिस्टेंस लेती है जिसकी इनकम बिलो है टू फ्रॉम ए थ्रेशोल्ड, तो वो चीज़ है। सो विद दिस, सो दिस इज द एंटायर CSS विच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। In the next lecture, I'll take the review of the 7th schedule. तो अभी 7th schedule तो हमने देखा ही कि आपको अमेंड करना होगा, ठीक है ना, उसमें कंकरेंट लिस्ट को कम करना होगा, स्टेट को बढ़ाना होगा आपने, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें इट इज़ मैंडेटरी फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट को जरूरी है, भी यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको स्टेट में कंकरेंट में मूव कर रही है, स्टेट को कम करे जा रही है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म हो रही है इससे। तो केवल वही सब्जेक्ट जो कि ज़रूरी है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनको कॉन्करेंट में डालो, अदरवाइज स्टेट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी और बात करेंगे 7th शेड्यूल की नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।